Hello friends, myself Manisha Mane. Today we are going to the exceptions to the law of demand. In last lecture, explain and start law of demand. What is meant by law of demand? Law of demand means explain the relationship between price and quantity demanded. Explained by Professor Alfred Marshall in his statement. Which is the statement? Other thing being constant, higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded, and opposite side, lower the price of a commodity, larger is the quantity demanded. It means rise demand when fall in price. Opposite, fall in demand means when rise in price. So simply it is inverse relationship between price and quantity demanded, and it is a functional relationship between price and quantity demanded. Means any particular commodities change in price that's affect change in a quantity demanded. इसका मतलब क्या होता है? डिमांड इज अ फंक्शंस ऑफ प्राइस. डिमांड एक प्राइस का फंक्शन है और प्राइस जिस तरीके से चेंज हो जाएगी उसी के अनुसार डिमांड चेंज हो जाएगा. बट प्राइस एंड डिमांड के बीच में जो रिलेशंस रहेगा वो कौन सा रहेगा? अपोजिट रिलेशंस रहेगा. उसके साथ में हम लोगों ने अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ डिमांड, हेल्प ऑफ द शेड्यूल एंड डायग्राम. And next one, assumptions to the law of demand. Assumption, it is the base of the law of demand. So some of the assumptions explain the law of demand. For examples, level of the incomes is a constant, size of populations no change, taste, habit, fashions, preference, etc. Government policy should not be changed, substitute commodity, complementary commodity, etc. सो इस तरीके से कई फैक्टर्स देखे थे कि हमारा लॉ अप्लाई होने के लिए सही तरीके से हम लोगों को प्रैक्टिकली प्रेजेंट करने के लिए ये सब कंडीशंस क्या करनी पड़ेगी? एज्यूम करनी पड़ेगी. अभी हम लोग जो देखेंगे वो पार्ट है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. इसका फर्स्ट वन हम लोग शॉर्ट में इंट्रोडक्शंस देखते हैं. सो देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. मीन्स some exceptions to the law of demand. It means under the exceptions circumstances to the law of demand. For examples, if it explain, it prove that some exceptions to the law of demand. More demanded when rise in price. Opposite side, less demanded when fall in price. It is indicate डायरेक्ट रिलेशंस बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. हमें ऐसे कई एग्जाम्पल दिखने के लिए मिलेंगे कि जिसकी प्राइस बढ़ने के बाद वहाँ पर डिमांड क्या हो गया है? बढ़ गया है. और कई ऐसे एग्जाम्पल दिखेंगे कि जिसकी प्राइस कम होने के बाद भी वहाँ पर उसका डिमांड कम हो गया है. अभी हम लोग इसके लिए समझने के लिए डायग्राम की तरफ देखते हैं. इन द अबाउ डायग्राम, एक्स एक्सेस इंडिकेट डिमांडेड इन kgs and y-axis indicate price in rupees. DD is a demand curve, means upward movement and directions is the left to right directions. जैसे हमारा डिमांड कर्व कैसे था? डाउनवर्ड जा रहा था. बट एक्सेप्शनल डिमांड कर्व कैसे जा रहा है? सो अपवर्ड जा रहा है और वहाँ पर उसका डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन. तो इसे कहा जाता है एक्सेप्शनल डिमांड कर्व. मीन्स अपवादात्मक वहाँ पर डिमांड कर्व, अपवादात्मक वक्र. अभी हम लोग वहाँ पर इसके कंटेंट मीन्स पॉइंट देखेंगे. सो सम आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. एक्सप्लेन इन योर टेक्स्ट बुक 6 point exceptions to the law of demand and additional 1 point. So one by one explain the exceptions to the law of demand. First point is Giffen paradox. Giffen paradox means given goods means low quality goods या फिर inferior goods. Giffen goods को ही वहाँ पर low quality inferior goods या फिर giffen goods के नाम से जाना जाता है. So what is meant by giffen goods? Giffen goods means those goods demand does not rise. Given goods are those goods demand does not rise if their price
false. In our law explain price in falls, it means a rise in demand. But these exceptions does not rise in demand when fall in price. या फिर opposite size explain demand decreases when the price of such commodity is falls. Means demand decrease when fall in price. गिफिन गुड्स क्या बता रहा है कि मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ रही है. कब नहीं बढ़ रही है? जबकि मार्केट में कमोडिटी की प्राइस कम हो गई है. या फिर हम लोग वहाँ पर नेक्स्ट भी एग्जांपल देख सकते हैं. जैसे मार्केट में डिमांड कम हो गया है. कब कम हो गया है? सो मार्केट में कमोडिटी की प्राइस कम हो गई है. तो इट इज़ अ डायरेक्ट रिलेशंस बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. And it is say that given goods are exceptions to the law demand. Again explain these examples. Robert means Giffen paradox explained by Sir Robert Giffen. This is the England economist. Means it is observed and related demand bread and meat. In our country, observed and related two commodities. First one is the low quality and second one is the superior, means high quality commodity. So low quality commodity means bread and high quality commodity means meat. So these examples are explain and understand Giffen goods means Giffen paradox. For examples, bread, price of the bread was decreasing, but any peoples not more demanded, these peoples change the attitude. So what happened? Means peoples increase the real income and give one preference of the purchase a superior commodity. अपने कंट्री में उसने क्या ऑब्जर्व किया था? जबकि ब्रेड की प्राइस कम हो गई है, ब्रेड की प्राइस कम होने के बावजूद भी लोगों ने ब्रेड की डिमांड कम कर दी है. इसका असर क्या हो गया है कि उनका एक रियल इनकम बढ़ गया है, मतलब उनकी सेविंग बढ़ गई है. तो उन्होंने किन चीज़ों के लिए प्रेफर किया है, किसे प्रेफरेंस दिया है? सो उसके अपोज में जो सुपेरियर कमोडिटी है जिसकी प्राइस ज़्यादा है, उससे परचेस करने के लिए उसने क्या कर दिया है? अपनी पसंदी बताई है. मतलब वो क्या कर रहा है, जो भी पैसा अपने पास सेव हो रहा है और वहाँ पर एक्चुअली जितना वहाँ पर पैसा उसके पास और है, तो उन दोनों की तरीके से वो क्या करता है? सुपीरियर कमोडिटी को परचेस कर लेता है. तो इसी तरीके से वहाँ पर कभी भी हम लोग ये लो क्वालिटी गुड्स एंड सुपीरियर क्वालिटी गुड्स के बारे में इस तरीके से, मतलब एक नॉर्मली पीपल्स की वहाँ पर बिहेवियर एटीट्यूड देख सकते हैं. हमारे कंट्री में भी हम लोग देख सकते हैं. जैसे वहाँ पर एक अच्छे क्वालिटी का राइस, उसके साथ में एक सबसे लो क्वालिटी का राइस, उन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं. या फिर वहाँ पर गेहूँ, बाजरा उनका वहाँ पर कॉम्पिटिटिवली बता सकते हैं. ऐसे कई एग्जांपल्स को कहा जाता है गिफिन पैराडॉक्स. सेकंड पॉइंट है प्रेस्टीज गुड्स. प्रेस्टीज गुड्स का मतलब है प्रतिष्ठात्मक वस्तु. प्रेस्टीज गुड्स मीन्स सम high quality goods, for example high price of the motor, luxuries, bungalows, gold, diamond. These commodities are the high price commodities. So in our society it is indicate the status indicator. ये सभी कमोडिटी हमारे सोसाइटी में क्या मायने रखती हैं? तो ये कमोडिटी एक आपका स्टेटस बताती है, मतलब एक आप लोगों को एक रिच स्टेटस प्रदान करती है. मीन्स रिच पीपल्स आर मोर डिमांडेड व्हेन हाई प्राइस ऑफ द कमोडिटी. व्हाई? सो इन आवर सोसाइटी प्रेजेंट इट्स स्टेटस एंड देयरफॉर इट इज़ अ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. कभी भी हम लोग देखेंगे जो भी हमारा श्रीमंत वर्ग रहेगा, रिच पीपल्स रहेंगे, जो भी मार्केट में कमोडिटी ज़्यादा महंगे हैं उन्हें परचेस करना वो पसंद करते हैं. क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ये कमोडिटी जब उनके पास रहेगी, जब कोई त्यौहार रहेगा, जब वहाँ पर किसी भी मतलब जब हम लोग किसी सोसाइटी में रहते हैं, कभी दिखाएंगे तो सोसाइटी में क्या होता है, अपना एक अलग से स्टेटस दिखता है.
और उसी स्टेटस की वजह से ये लोग क्या करते हैं, हाई क्वालिटी गुड्स को परचेस करते हैं। थर्ड वन पॉइंट है स्पेकुलेशंस। स्पेकुलेशंस का मतलब होता है भविष्यकालीन अंदाज। हम लोग उसे अजम्पशंस का भी पॉइंट कह सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर्स प्राइस। सो लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई मीन्स या फिर डज नॉट ट्रू होल्ड द एनी एक्सपेक्टेशंस मीन्स राइज और फॉल्स इन द फ्यूचर प्राइस। For examples, any customer expect rise in price in the near future, so change demanded at present. कभी भी हम लोग देखते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे कस्टमर है कि वहाँ पर अपनी फैमिलीज़ का वहाँ पर वेलफेयर के हेतु से वो क्या करते हैं, एक फ्यूचर्स का एक्सपेक्टेशंस करते हैं। मतलब जैसे ही अपनी उम्र रहेगी, जैसे ही वहाँ पर अपना नॉलेज रहेगा, उस हिसाब से उन्हें समझ में आता है कि ये कमोडिटी अभी मार्केट में इसकी ये प्राइस है तो कुछ टाइम के बाद और क्या प्राइस हो जाएगी, और इसी एक्सेप्टेशन से उनका आज के डेट में डिमांड में चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग वहाँ पर इसका भी एक एग्जाम्पल्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, प्राइस हैव राइज इन टुडे। क्या हो गया है, आज के डेट में प्राइस बढ़ गई है। Consumer will demand more because its expectations rise in price in near futures. In today, rise in price, but more demanded. Why? Because its expectations about rise in price the near futures. जबकि आज के डेट में प्राइस बढ़ गई है, तभी भी उसका डिमांड बढ़ गया है, और उसका रीज़न क्या है कि उसे लग रहा है कि आज भले ही प्राइस बढ़ गई है बट और के वहाँ पर कुछ 2 दिन के बाद इसकी प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, और इसी रीज़न की वजह से वो क्या कर लेता है, डिमांड ज़्यादा बढ़ा देता है। या फिर हम लोग और कई वहाँ पर एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे स्टॉक मार्केट का एग्जांपल। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन्वेस्टेड इन द मनी ऑफ द स्टॉक मार्केट, means shares, debenture shares, etc. So why? Because today's are the higher price, for example shares, but after some times get more value, means maximum value invested in the shares market price, and therefore at present rise in price means higher values it is इन्वेस्टेड इन द मनी। फिर फॉर एग्जांपल्स हम लोग हमारे फेस्टिवल्स का भी एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स हमारे इंडिया में ही बहुत बड़ा त्यौहार दिवाली को कहा जाता है। बिफोर द दिवाली मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर एक्सपेक्टेशंस इन, या फिर ड्यूरिंग द दिवाली विच एक्सपेक्टेशंस। सो ड्यूरिंग द दिवाली राइज इन प्राइस ऑफ द सम कमोडिटी, फॉर एग्जांपल ऑयल, घी, शुगर एक्सेट्रा। कई लोगों को क्या लगता है कि दिवाली के टाइम में इन चीज़ों की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, बिफोर दिवाली परचेस मोर डिमांडेड या फिर मोर कमोडिटी, फॉर एग्जांपल्स ऑयल, घी, राइस, शुगर एक्सेट्रा एट अ हायर प्राइस। बट ज़्यादा प्राइस रहेगी तभी भी ये लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर जो हमारा स्पेकुलेशंस है मीन्स एक्सपेक्टेशन है, ये भी क्या कर देता है, वहाँ पर एक्सपेक्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट वन पॉइंट है प्राइस इल्यूशंस। प्राइस इल्यूशंस का मतलब है कीमत आभास। समटाइम्स पीपल हैव एन इल्यूशंस हायर price of commodity, it is indicate the better quality of commodity. Sometimes people have an illusions that higher price of commodity, it is indicate the better quality of commodity, and it means more demanded at high price. Explain exceptions to the law of demand. कई बार ऐसे क्या होता है कि जो भी चीज़ ज़्यादा महंगी है वो चीज़ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है, वो ब्रांडेड है, ऐसे वहाँ पर हमारी धारणा होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा प्राइस में भी वहाँ पर उस कमोडिटी को परचेस करते हैं। फिर कभी भी हम लोग त्यौहार की बात देखेंगे या फिर कोई ब्रांडेड वॉच देखेंगे, कुछ ब्रांडेड एक आधी जीन्स देखेंगे, कोई ड्रेस देखेंगे एक्सेट्रा। सो सम कमोडिटीज़ आर डायरेक्ट रिलेशंस बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड है। ये समझ में आता है ना। जब हम लोग को कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं ये वॉच आपके लिए बहुत महंगी है,
शायद आप लोग ये परचेस करते तो बहुत अच्छी थी, मतलब आपके 200-300 रुपये बच जाते। तो कई बार वहाँ पर लोगों का आंसर क्या आता है, नहीं नहीं ये ब्रांडेड है, इसकी क्वालिटी कुछ अलग ही है, ख़ास है इसकी क्वालिटी, इसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर जो पैसा दिया है ये सही है। तो इस तरीके से वहाँ पर यही हमारा बिहेवियर, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। 5th वन पॉइंट है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान। Sometimes people do not have proper market knowledge. Does not have a proper market knowledge means more demanded when high price. Sometimes less demanded when fall in price. Why? Because does not have a proper market knowledge. So it is indicate the few people, some people, etc. कई बार ऐसे होता है ना, घर में वहाँ पर कई लोग होते हैं कि जिन्हें मार्केट के बारे में ज़्यादा अच्छे से ज्ञान नहीं है, उस प्लेस के बारे में नहीं है, वहाँ पर प्राइस के बारे में ज्ञान नहीं है, और उसी रीज़न की वजह से क्या हो जाता है, वो मार्केट में जाने के बाद कभी कभी बहुत ज़्यादा वहाँ पर कमोडिटी परचेस कर लेते हैं। उन्हें ज्ञान भी नहीं होता है कि कल इसकी प्राइस कम थी, आज इसकी प्राइस ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा प्राइस में ही ज़्यादा कमोडिटी डिमांड कर लेते हैं। सो कई बार ऐसे होता है कि ये कमोडिटी थोड़ी ज़्यादा लेनी चाहिए क्योंकि बहुत दिनों के बाद सस्ती हो गई, बट इन्हें कुछ पता नहीं होता है, तो ये लोग क्या करेंगे, कम डिमांड करेंगे जबकि मार्केट में कम प्राइस है। तो इसे कहा जाता है इग्नोरेंस। उसके साथ में हम लोग देखेंगे हैबिचुअल्स कमोडिटी। हैबिचुअल्स मीन्स आदत। सो सम कमोडिटीज़ आर द हैबिचुअल्स कमोडिटी। सो फॉर एग्जाम्पल्स मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर हैबिचुअल्स फॉर द टी कॉफ़ी। मीन्स sometimes to consume the tea, sometimes to consume the coffee, means every day 4 to 5 times to consume the coffee or tea. These conditions are not complete day some persons. So habituals means more demanded when high price, अभी sometimes less demanded at फॉल्स इन प्राइस। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें इतनी आदत है तो वहाँ पर कभी भी बहुत चाय की आदत है, बट चाय की प्राइस डबल हो गई है, मतलब चाय पाउडर डबल प्राइस से हो गई है, दूध इतना महंगा हो गया है, शक्कर भी इतनी महंगी हो गई है, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार वहाँ पर उसका डिमांड बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि उसे बहुत आदत है। और भी एक हम लोग अदर एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जिसे वहाँ पर हम लोग अल्कोहल बता सकते हैं। सो अल्कोहल के बारे में हमें ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिलेंगे, जैसे वहाँ पर लिक्वर्स मीन्स ड्रिंकर्स लोग रहेंगे, ड्रिंकिंग करने वाले, उसके साथ में स्मोकिंग करने वाले, या फिर वहाँ पर इट हैज़ कंजप्शंस ऑफ द टोबैको। सो दिस सम पीपल्स आर द हैबिचुअल्स फॉर द स्मोकिंग कंटेंट एंड देयरफॉर मोर डिमांडेड व्हेन हाई प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो हमें यही दिखता है कि वहाँ पर कितनी भी इसकी प्राइस बढ़ गई तो भी ये लोग क्या करते हैं, डिमांड ज़्यादा ही कर लेते हैं। उसके बाद वहाँ पर पिछले सिलेबस में, मतलब जो हमारा वहाँ पर पिछला साल था उसमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, वो भी पॉइंट वहाँ पर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, जिसका नाम है इमिटेशंस। और इमिटेशंस का मतलब है अनुकरण करना। सो सम लो इनकम ग्रुप पीपल इमिटेट हाई इनकम ग्रुप पीपल एंड मोर डिमांड व्हेन राइज इन प्राइस। फॉर एग्जाम्पल्स LED TV, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन एक्सेट्रा। कई बार ऐसे क्या होता है कि जिनका इनकम बहुत कम है या फिर कम इनकम, मिडिल इनकम वाले जो लोग हैं वो किनका अनुकरण करते हैं, सो जो लोगों का इनकम ज़्यादा है और उनका कंपैरिजन्स करने के बाद उन्हें लगता है कि अपने पे घर में क्या होना चाहिए, बड़ा सा LED TV होना चाहिए, हमारे पास भी एक स्मार्टफोन होना चाहिए, एक अच्छी वहाँ पर उस क्वालिटी की वॉशिंग मशीन होनी चाहिए, और ये सब इमिटेट करके वो लोग परचेस कर लेते हैं। ऐसे कई एग्जांपल्स दिखे गए। हमें सिंपल वहाँ पर कोई फेरी वाला भी दिखेगा तो उसके पास भी कुछ 10-12 हज़ार का स्मार्टफोन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इमिटेट करते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ओके, सो यहाँ तक ये हमारे पॉइंट है, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये लॉ हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, मीन्स लॉ ऑफ डिमांड। और आज का हमारा कंटेंट था एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।